Akhi, we are Muslims. We are Muslims. We follow Islam. It means we follow the orders of Allah. These orders were given to the Prophet Muhammad, peace be upon him. Peace be upon him. इसका full form होगा, मैं आपके साथ लिख देता हूँ. Peace be upon him. Peace be upon him यानी alayhi salam. Peace be upon him. P-B-U-H. The angel Jibreel brought these orders. A Muslim believes in only one God. He believes that Allah is the creator. Allah created everything. He is the Lord of the worlds. He is the most merciful. He is the master of the day of judgment. We worship him alone. To him alone we turn for help. एक मरतबा सुने. We are Muslims. हम मुसलमान हैं. We are Muslims. हम मुसलमान हैं. We follow Islam. हम इस्लाम की इत्तिबा करते हैं. It means we follow the orders of Allah. इसका मतलब है कि हम अल्लाह के अहकाम को मानते हैं. These orders were given to Prophet Muhammad, peace be upon him. ये अहकाम were given to Prophet, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए थे. Angel Jibreel brought these orders. फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम इन अहकाम को लेकर आए. A Muslim believes in only one God. एक मुसलमान सिर्फ एक खुदा पर ईमान रखता है. He believes that Allah is the creator. उसका ईमान है या वो ईमान रखता है कि अल्लाह खालिक है. Allah created everything. Allah रब्बुल इज्जत ने हर चीज पैदा की. He is the Lord of the worlds. वो सारे जहान का मालिक है. He is the most merciful. वो मेहरबान है, रहीम है. He is the master of day of judgment. Day of judgment यौम जज़ा. मास्टर मालिक, वो यौम जज़ा का मालिक है. We worship him alone. हम उसी की इबादत करते हैं. हम तन्हा उसी की इबादत करते हैं. To him alone we turn for help. और हम मदद के लिए उसी की तरफ रुजू करते हैं. मदद के लिए उसी की तरफ लौटते हैं. टर्न, लौटना, रुजू करना. पढ़े आप में से कोई. Bismillahirrahmanirrahim. We are Muslim. We are Muslims. We follow Islam. It means we follow the orders of Allah. These orders were given to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Were given to the Prophet Muhammad, peace be upon him. The angel Jibreel brought these orders. A Muslim believes in only one God. He believes that Allah is the creator. Allah created everything. He is the Lord of the worlds. He is the most merciful. He is the master of the day of judgment. We worship him alone. To him alone we turn for help. Okay. Anybody else, please? We are Muslims. We are Muslims. We follow Islam. It means we follow the orders of Allah. These orders were given to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. The angel Jibreel brought these orders. A Muslim believes in only one God. He believes that Allah is the creator. Allah created everything. He is the Lord of the world. He is the most merciful. He is the master of the day of judgment. Worship him alone. To him alone we turn for help. नईमुद्दीन साहब, आपकी आवाज आ रही. वेरी गुड. अनस खान, वेरी गुड. यस. मैं तो मौलाना आपसे कहना चाह रहा था कि बाद में कहूंगा ये बात कि सूर्य फातिहा का तर्जुमा जी. तो माशाल्लाह तो भेज दिया आपने. क्या चीज? मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि बाद में कहूंगा मैं मौलाना से
कि सूरह फातिहा का जो है तर्जुमा इंग्लिश में भेज दीजिएगा। हाँ मैं भेज अब वही आ दूंगा। गया माशाल्लाह। और उसमें से सारी चीजें थोड़ा नहीं थोड़ा तो आ है, ही गया इसमें। सारी चीजें नहीं है उसमें से, मैं भेजता हूँ आपको इंशाल्लाह। जी जी मतलब अक्सर तो मैं चीजें पढ़ूं? उसमें है, अक्सर चीजें इसमें आ गई। जी। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसमें से अक्सर जुमले याद कर लें, ये आपके काम आने वाले जुमले हैं इसमें के, जबानी याद कर इंशाअल्लाह लें। कल आप जरूर इसमें से सुनाए जितना हो सकता है, मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस, दैट इंशाअल्लाह। विल हेल्प यू अ लॉट इंशाल्लाह। अब आगे जो है कलर्स है। सर प्लीज माय जी स्पीक प्लीज। यस सर सर प्लीज एक बार और सिर्फ बता दीजिए, मतलब पढ़ के, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था अच्छा ये अच्छा। लेसन। वी आर मुस्लिम्स, वी आर मुस्लिम्स, हम मुसलमान हैं। वी फॉलो इस्लाम, हम इस्लाम की इत्तिबा करते हैं। इट मीन्स वी फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ अल्लाह। इसका मतलब यह है कि हम अल्लाह के अहकाम को मानते हैं। These orders were given to the Prophet Muhammad, peace be upon him. ये अहकाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए। The angel Jibril brought these orders. फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम इन अहकाम को लेकर आए। A Muslim believes in only one God. एक मुसलमान सिर्फ एक खुदा पर ईमान रखता है। He believes that Allah is the creator. वो ईमान रखता है कि अल्लाह खालिक है। अल्लाह created everything. अल्लाह ने हर चीज पैदा की। He is the Lord of the worlds. वो सारे जहान का मालिक है। He is the most merciful. वो बहुत मेहरबान है। He is the master of the day of judgment. वो यौम जज़ा का मालिक है। We worship him alone. हम उसी की इबादत करते हैं। To him alone we turn for help. और हम उसी की तरफ मदद के थैंक्स अ लॉट लिए। सर। ओके यस थैंक यस। यू, यू आर वेलकम। ओके थैंक्स अ लॉट। यहाँ पे एक दो चीजें मैं आपको लिखने के हिसाब से बताऊंगा। देखिए डे ऑफ जजमेंट में डी कैपिटल है, जे में जी कैपिटल है, समझ रहे हैं? और हिम का एच कैपिटल है, और जी का, गॉड का जी कैपिटल है, मुस्लिम का एम कैपिटल है, मुस्लिम का एम कैपिटल। ये क्यों? इस्लाम का आई, तो एंजल का जिब्रील का जे, प्रॉफिट का पी और एम। ये इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा, अभी जहन में रखें आप इसको, ये एक अहम चीज है, इसको जहन में रखिएगा आप लोग। आपको एक सवाल जवाब तलाश कीजिएगा इसका, कल मैं आपसे क्लास में पूछूंगा, नहीं हुआ तो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। अंडर देयर इज सी कलर्स। अब आपको कलर के ऊपर वोकेबलरी अल्फाज याद करना है। यहाँ पे जिक्र है ब्लैक काला, पिंक गुलाबी, ब्लू नीला, वायलेट बैगनी, ब्राउन बादामी, रेड लाल, व्हाइट सफेद, ग्रे सुरमई, मैरून सुर्ख, ये गहरा सुर्ख बोलते हैं मैरून कलर, ऑरेंज नारंगी, वर्मिलन सिंदूरी, ग्रीन हरा, ब्लैक पिंक ब्लू वायलेट ब्राउन रेड वाइट ग्रे मैरून ऑरेंज वर्मिलन ग्रीन। ये अल्फाज याद करके आए आप स्पेलिंग के साथ। अब देखिए नीचे। सर सफेद को उर्दू में सफेद बोलते हैं क्या? हाँ सफेद सर ही ये बोलते जो हैं। इसका मैं सफेद बोलता हूँ, और मैंने अपने 2-3 उस्ताजों को सफेद बोलते हुए सुना, उन्हीं की नकल करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैंने भी कुछ लोगों को सफेद बोलते हुए सुना। सफेद ही है सर। सफेद ही असल लफ्ज होना चाहिए गालिबन, क्योंकि अच्छे मतलब अहम महारत रखने वाले जबान में उस्तादों से बोलते हुए सुना। लेकिन बाज मर्तबा ऐसा होता है उन लोगों की भी किसी की आदत हो जाती है इस तरह बोलने की, लेकिन मैंने किसी डिक्शनरी से कंसल्ट नहीं किया, बस इत्तिबा कर रहा हूँ, फॉलो अप। यूज ऑफ हैज हैव हैड। हैज हैव हैड का जुमलों में इस्तेमाल। हैज हैव हैड का मीनिंग देखिए, ये तीनों अल्फाज पोजीशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, मिल्कियत को बतलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी ये चीज मेरे पास है, ये चीज उनके पास है, ये चीज मेरे पास थी। तो अगर हाल में यानी प्रेजेंट में आप पोजीशन बतला रहे हैं
तो उसके लिए हैज और हैव का इस्तेमाल होगा। और अगर आप माजी में पोजीशन को बतला रहे हैं तो उसके साथ हैड का इस्तेमाल होगा। ये डिफरेंस है तीनों में। हैज एंड हैव, दीज आर फॉर प्रेजेंट, एंड हैड जो है ये आपका है माजी के लिए यानी पास्ट के लिए। अब हैज और हैव में फर्क क्या होगा? हैज का इस्तेमाल सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ होगा। सिंगुलर प्रोनाउंस में आपने पढ़ा था ही, शी, इट। ही, शी, इट, ये सिंगुलर प्रोनाउंस है, तो इनके साथ हैज का इस्तेमाल होगा। और प्लूरल प्रोनाउंस में आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, इनके साथ हैव का इस्तेमाल होगा। जैसे प्रेजेंट हाल देखें, ही, शी, इट प्लस हैज, ही हैज अ पेन, उसके पास एक कलम है, ठीक है। और है प्लूरल में देखें आई, वी, यू, दे, इनके साथ हैव का इस्तेमाल होगा। वी हैव आई प्लूरल में आता है सर? जी हाँ, आई प्लूरल में आता है सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और पास्ट कंटिन्यूअस में उसको वाहिद का दर्जा दिया गया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यानी आई एम अ बॉय, उसकी एक अलग हैसियत है। पास्ट में आई वॉज अ बॉय या आई वॉज ए स्टूडेंट, उसकी एक अलग हैसियत है वहां पे से। बाकी हर जगह आई का और यू का, ये चाहे एक ही आदमी हो, ये हमेशा प्लूरल ही में आते हैं, ठीक है। आई, वी, यू, दे प्लस हैव, वी हैव बुक्स, हमारे पास किताबें हैं। उसके बाद है माजी के लिए क्या होगा? माजी के लिए हैड होगा, माजी के लिए हैड। तो इसके लिए यानी माजी में तमाम प्रोनाउन सेम है, सबके साथ हैड का इस्तेमाल होगा। फिर फर्क सिर्फ प्रेजेंट में है, ही, शी, इट के साथ हैज, आई, वी, यू, दे के साथ हैव, लेकिन माजी में तमाम प्रोनाउन के साथ हैड का इस्तेमाल होगा। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट प्लस हैड। फॉर एग्जाम्पल, यू हैड मेनी फ्रेंड्स लास्ट ईयर, गुज़िश्ता साल आपके कई दोस्त थे, गुज़िश्ता साल आपके कई दोस्त थे। अब नीचे एग्जांपल्स हैं, कोई किसी को कोई डाउट तो नहीं हैज, हैव, हैड के यूज पे? सर सर हैज हैड आर आल्सो क्लियर, बट फ्यूचर के लिए कौन सा क्या यूज करेंगे सर? फ्यूचर के लिए विल बी का यूज करते हैं। विल बी, आई विल बी अ स्टूडेंट, उसका भी कवर करेंगे, आएगा आगे। विल बी, ओके ओके ओके। सो सी द एग्जांपल्स। मुनीमा हैज अ जॉइंट फैमिली, यानी जॉइंट फैमिली है, एक साथ रहने वाला खानदान। एंड यू हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर यानी मजाक करने का जो आपका हिस्सा है। तर्जुमे में क्या फर्क आएगा इसमें हैज और हैव में? जैसे अभी ये देखे फर्क इतना आएगा, है एंड है मैं, उसके पास एक कलम है, हमारे पास किताबें हैं। यहाँ जमा का हो जाएगा, फर्क आएगा, वहाँ वाहिद का होगा। जी अबुल हसन साहब, वही वाहिद जमा का ना? हाँ वाहिद जमा का फर्क है सिर्फ। जी हैज और वाज में क्या फर्क जी? हैज और वाज में, हैज और वाज में, हैड या वाज में बोल लेना, शायद आप हैड और वाज में। हैज हाँ, हैड में ना, देखिए वाज मिल्कियत को नहीं बतलाता है, वाज मिल्कियत को नहीं बतलाता, पोजीशन को नहीं बतलाता है, वो सिर्फ सिचुएशन को बतलाता है, हालत को बतलाता है। और हैड मिल्कियत को बतलाता है, पोजीशन को बतलाता है। यानी अब फॉर एग्जांपल बोल रहे हैं मैं एक तालिब इल्म था, तो तालिब इल्म था ये आपकी एक सिचुएशन, ये एक स्टेट है, ये एक हालत है। मेरे पास किताबें थी, मेरे पास कई दोस्त थे, ये एक मिल्कियत को आपको बता रहा है, समझ रहे? क्लियर अबुल हसन? तो इसमें वाज लगाने की जरूरत नहीं है मौलाना, ऐसे बोल देंगे जैसे भाई मेरे पास किताबें थी। नहीं आई हैड बुक्स ही आएगा। जहां आई हैड मैनी बुक्स, जी आई हैड मैनी बुक्स, जहां पे आप मिल्कियत को बतला रहे हैं, मिल्कियत माना समझ रहे हैं ना आप? जी मिल्कियत समझ रहे हैं जी, तो वहां पे हैड इस्तेमाल होगा। और जहां पे आप हालत को बतला रहे हैं, हालत को, सिचुएशन को, एक हालत आपकी ये थी, इस तरह भी थे,
किसी चीज की ये हालत थी, वो एक दरख्त था, तो वहां पे हालत को जब बतलाते हैं आप तो वो वॉज एंड वर का इस्तेमाल होता है। माजी में हालत को बतलाने के लिए वॉज एंड वर का इस्तेमाल होता है, बाकी हैड का इस्तेमाल होता है। सर ज्यादा तो जरा से मैं ही बता दूं। जी, मतलब खुद के बारे में अगर से इसमें- इस्तेमाल करेंगे तो वाज का इस्तेमाल करेंगे, और गैरों के लिए मतलब किसी और के बारे में इस्तेमाल एक करेंगे तो मिनट, हैड। मैं लिंक दोबारा भेज रहा हूँ, ये फिनिश हो रही है, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ।